Hello, ma'am. Is there any doubt? Am I audible to you? Ma'am, now you're Am I audible. audible now? You Okay, okay, was mute. No, that's fine. why. Yeah, I'm going to share my screen. Just a moment. Just a bit. Okay. म्यूट नंतर करू आता. They will ask you where they will ask you first how what is the use of angular mean.js फाइल का. ओके तो हम लोग रट्टा मार के जाते हैं तो फिर पता है एंगुलर जेएस एप्लीकेशन इफ यू वांट टू क्रिएट देन वी हैव टू इंक्लूड दैट फाइल इन आवर एप्लीकेशन. सो व्हाट इज द अनदर वे वी कैन इंक्लूड दैट फाइल? चुप. ओके सो चुप नहीं बैठने है. दिस इज द अनदर वे. Okay, what is the another way? Go to the website, official website, CDN through. So what is the content network or content delivery network? Just read. That's very important to understand क्या करने वाले हैं. What is the use? Once you use this file, once वो API वगैरह Google API use किया, so what will be happen in your application? Three major parts they are giving you. Three major features they are giving you. The first one is what? What is the first one? Better caching. Means what? Read it and give the answer. Read carefully one by one, understand that, and then just go Ma'am, to the next line. sorry to Uh-huh. interrupt you, but you share the screen. No, I am not yet shared my screen. I'm just restart my PC. Okay, Just a fine. moment. Otherwise, use online people just go to the angularjs.org. Okay, and Okay. visit that website. And the second option, I'll repeat the steps again. Once I share my screen, I repeat this steps. mean.js कुठलीच नाहीये. हायफन मीन नाहीये. मीन पाहिजे. मीन आहे. मीन 4 आहे. जेएस आहे. जेएस आहे. हा जावा ओपन कर. नाहीये म्हणजे मग एक काम कर. इथे डाउनलोडचं ऑप्शन आहे ना, डाउनलोड कर आणि तिथे लिह. इथेच फोल्डर कुठे पण डेस्कटॉप वरती पण गेलं तरी चालेल किंवा बेटर तुझं जे फोल्डर बनवलंयस ना तिथेच टाकून दे. ओके क्या है व्हाट इज द बेटर कैशिंग? हाँ स्पीड के लिए क्या क्या ओके बूस्ट हो जाता है और क्लाइंट पे स्टोर होता है. ओके क्यों मैंने क्यों रीड करने को व्हाई आई सेड टू रीड ऑल द कंटेंट्स because what you have to do first see first of all you are working or you are acting as what client ना. अभी हम लोग client है ना, सब लोग client machine पे काम कर रहे हैं. Okay so which server you are using? AngularJS created by Google only.
सो गूगल एपीआई लिखा है, देखो उन्होंने, है ना, तो गूगल के खुद के एपीआई बना के रखे हैं, सो दैट एंगुलर जेएस का जो रन टाइम सर्वर आता है दैट इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट मशीन. तो बेटर कैशिंग मतलब क्या? whenever you are going to do any manipulation, I am talking about what is statements and expressions we learn na. How many expressions are there in AngularJS? कितने हैं expressions? हाँ, expressions, there are 4 types of expression. पहला कौन सा है? number, फिर string, third one object and fourth one array. इसके सिवा और कुछ भी नहीं है. If you remember my last lecture, I told you that you can't use if else wala control statements, you can't use. But instead of control statement, they are providing you what? ng and directives बहुत सारे. ng if है, ng show है, ng hide है, ng templates है, bind है. So many directives are there. Inbuilt भी है, आप खुद भी build कर सकते हो, publish कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है? So coming back, what the better caching? Better caching is nothing but what? Whichever the task you are going to express in these 2 curly braces, that will get executed on the client machine. भले वो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? सर्वर से, बट इट विल नॉट गो एंड राउंड ट्रिप जाके विजिट करके फिर से नहीं आएगा. इट विल एग्जीक्यूट हियर. दैट्स व्हाई एपीआई, गूगल एपीआई एसआरसी देके रखा है. मीन इट विल एग्जीक्यूट ऑन द ब्राउजर ऑफ द क्लाइंट मशीन के ब्राउजर पे ही वो एग्जीक्यूट होगा. It's a browser language. It's a browser framework. It will provide you there only. Browser पे. तो browser पे execute हो रहा है, so it will not take more time. Then and there. और client को कौन request भेज रहा है? Who is requesting? Client only, ना? तो आपका result कहाँ पे आ रहा है? See, very simple logic देखो क्या है. This is the application logic. Whatever we are writing, the application logic. आपका machine क्या है? What is your machine? Client. ओके आप कोड कहाँ पे लिख रहे हो? गूगल एपीआई यूज करके कोड कहाँ पे लिख रहे हो? मीन्स यू आर इफिशिएंटली यूजिंग क्लाइंट मशीन. समझ में आया बात ये? दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द हाई परफॉर्मेंस. वो नहीं जा रहा है सर्वर के विजिट करने के लिए, और कहीं पे भी भेज नहीं रहे हो. नॉट ऑन एप्लीकेशन सर्वर, नॉट ऑन योर जो होस्टिंग है वहां पे भी भेज नहीं रहो. यू आर एग्जीक्यूटिंग, यू आर टेकिंग द एफर्ट्स वेयर ऑफ द क्लाइंट मशीन. दैट्स व्हाई बेटर कैशिंग. कैशे में ही रहेगा ना, बफरिंग वाला जो भी टाइम है, द वैल्यूज वेयर इट विल कीप इन द मेमोरी, कैशे मेमोरी. इट विल यूज efficiently that memory for the performance of your expressions. That's it. expressions कौन से? 4. पहला कौन सा? फटाफट बोलो. पहला कौन सा? नंबर. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इसके अलावा वो कोई उसके पास कुछ भी नहीं है. तो ये सब कुछ expressions where it will execute on the client machine. थ्रू बोलो फटाक से. थ्रू. माझं कनेक्ट करा, लॅबचं नको कनेक्ट करू, माझं होम टू आहे ते. थ्रू व्हाट? अभी तो इतना रामायण बताया पूरा. थ्रू व्हाट? गूगल एपीआई जो भी एसआरसी में लिख रहे हो ना, सीडीएन, थ्रू द सीडीएन फाइल. तो आप क्लाइंट के मशीन में angular.mean.js भेजोगे क्या? नो. सो व्हाट यू विल डू in this way, second way? Yes or no? Okay, अभी देखो, there no need. इतना गूगल APIs और गूगल इतना ओपन है. if you want the cloud, अपना खुद का cloud, suppose if you are having your own cloud, fine, you can just save that CDN file, गूगल की जो उन्होंने बनाई है API file, in your cloud. And you can access it. See the flexibility of writing the code. Why the AngularJS is famous? Not only because of these 3 reasons. It is accommodated with the anything. Why I'm trying to explain you. If it is cloud, अभी आप मान लो हीरे का cloud है अपने पास. So if you are using the Hire cloud and the application on the Hire cloud, so no need to visit to the Google APIs. खाली SR से डाल के रखो, यहाँ पे execute होगा. You can create your own Google APIs के CDN फाइल. समझ में आ रहा है? गूगल सर्च करो, सबके पास नेट है ना, जस्ट गूगल सर्च करो. सुनो क्या सर्च करना है. ओके, हाउ आई विल गेट द CDN फाइल. तो बहुत सारे लिंक्स आएंगे. पहला लिंक रहेगा गूगल का, क्योंकि उसका माता पिता वही है ना, तो वो दूसरे लिंक्स देखो. एंड जस्ट गो टू द क्लाउड.
और क्या करना है, यू हैव टू जस्ट कॉपी द एड्रेस, कॉपी द एड्रेस. केलंस का ग बाळा? मीटला ऍड नाही केलं. बाकी ते कनेक्टेड आहे. थैंक यू. अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, रुको. हाउ आई विल गेट CDN फाइल. CDN डालना है, हाँ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. Wait, online वाले, wait, I am sharing my screen. I'll repeat the steps again what I explained this offline student. Am I audible clearly? Ma'am. तू जरा बघ हा, इकडे मी तिकडे बोलायला वगैरे गेले तर हा त्यांचे मेसेजेस वगैरे बघ. ऍड्रेसच नाही जो GXHWQ. विशाल एक काम करशील का रे, जरा अटेंडन्स आण आणि ऑनलाईन वाल्यांची लावून दे ना अटेंडन्स. अटेंडन्स शीट आणशील माझ्या ड्रॉवर मधली. ऑनलाइन जस्ट लिसन. हाँ हो गई मेरी स्क्रीन शेयर. अच्छा हो गई. तुम लोगों को क्लाउड्स मिले अलग अलग, है ना? या नहीं है ना? तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करेंगे आप? बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे. अगेन इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी. गूगल इज सेइंग दैट नो नीड ऑफ जस्ट टेकिंग माय API. गूगल API लोगे तो अच्छा है क्योंकि उसका ही है वो. AngularJS डेवलप बाय गूगल ओनली. ठीक है. और जो रन टाइम सर्वर प्रोवाइड कर रहा है वो गूगल का ही है. इफ यू रिमेम्बर द Node.js का V8 सर्वर बोला था मैंने, कुछ याद है क्या गूगल का? हो नहीं करी. अरे मार्च क्रोम का V8 सर्वर पता है? तो इट इज लाइक दैट. नोड के लिए सर्वर यूज करें V8 सर्वर. फ्रेमवर्क के लिए, ओके, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए व्हाट वी आर यूजिंग द AngularJS का सर्वर. और उसे सर्वर नहीं बोलते हैं, इट्स व्हाट कॉलिंग रन टाइम एनवायरनमेंट. तो जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है दैट इज आल्सो फ्रॉम गूगल. द कनेक्शन लाइन देयर है दैट इज आल्सो फ्रॉम गूगल. And the application we are using, that is what the Google created. Is it clear? So better to use this instead of using the cloud wale, different cloud wale they provided on the online. It is not harm. Most of the students, those are outside students, not from the college. They are using cloud wala because kabhi the organization paid for that cloud, right? जो आपका cloud पे server space मिलती है, so the company paying for that. So they are just making safely, they created and they store the file on the cloud. And that's why the other students using this directly from the cloud, क्योंकि वो cloud dedicated. For example, हीरे का cloud हम लोग का है. So that is dedicated for हीरे students, हीरे faculties. Are you getting me? Okay. तो suppose मैंने ये फाइल cloud पे रख दी API वाली, Google instead of Google का हम लोग का खुद का फाइल मैंने यूज करके वहाँ पे रख दिया. It is accessible by my students. यहाँ पे बैठे हैं वो. ओके. अगेन द बेटर कैशिंग. उधर ढूंढने नहीं जाना है. किधर ढूंढने जाना है? मेरा एप्लीकेशन किधर है? हीरे क्लाउड पे. ओके. कनेक्शन कहाँ पे है? CDN नेटवर्क फाइल हीरे क्लाउड पे. सो अगेन इट इज व्हाट द रेड्यूसिंग व्हाट द टाइम. जो आपका परफॉर्मेंस टाइप इंक्रीज होता है, रेड्यूसिंग टाइम फॉर दी सर्चिंग. नेटवर्क करना, सर्च करना, वो रेड्यूस हो रहा है. व्हाट इज द सेकंड फीचर हियर? डिक्रीज व्हाट? What do you mean by latency? यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे ही मिलेगा आपको आंसर. ऑनलाइन स्टूडेंट जस्ट लिसन ना. आपको
AngularJS org भी जाना है, and then just copy paste. If my screen is visible, then copy paste this CDN file. That's it. CDN और वहाँ पे आके you have to just go write this address particularly on screen script src. और मुझे लास्ट मंथ ही आणि सेकंड और मध्ये एक्सपोर्ट ब्लँक वाली आण ना. ब्लँक वाली एक्सपोर्ट नाही रे मध्ये पूर्ण ह्याच्यामध्ये बंचमध्ये, कारण की मला एक्सवाय दिसलं पूर्ण त्याच्यामध्ये. ते नाही, त्याच्या खाली असेल. क्या है? What do you mean by decrease latency? मतलब क्या? मतलब क्या? Simple है. If your folder here file is angular mean.js, if you can see my folder angular mean.js इधर ही है ना, same folder पे. कौन सा angular practical is my main folder. वहाँ पे मेरे सारे फाइल्स बन रहे हैं और वहाँ पे ही मेरी फाइल कौन सी है, angular mean.js. So where you will get the root directory इधर ही मिलेगी ना आपको. No need to be far. यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है. Whenever we are interacting with the network issue. Okay, so AngularJS का decrease latency मतलब क्या? If this particular application is not visiting any application, any on the server, visiting हो रहा है. Visit करने के लिए भी टाइम लगता है ना. Yes or no? Yeah. So it will decrease the latency. Latency is nothing but what the time delay to time हो रहा है. So it will not it will not waste the time for searching your application on the different server. सर्वर पे जा रहे हैं क्या? नहीं. उसको सेम फाइल कहाँ मिल रही है? इधर ही. आपका एप्लीकेशन किधर है? इधर ही. आपने एसआरसी डाल दिया, वो भी इधर ही है. Okay, I'm talking about this Angular mean.js as well as I'm talking about Google API. तो मैंने वहाँ खड़े होके I'll explain you. This Google API जो आपने copy paste किया है, so that is what the server application. AngularJS का framework who created? Google. पहले Google. Okay. Second क्या? Who created this API? Google. Where it is running? Google ने जो framework बनाया है, environment बनाया है, वहीं पे जाके आपका application run हो रहा है. Again the Google environment. Here हो ना? समझ में आ रहा है ना? तो इतने blank मत रहो, ये समझ के ले लो. Serious topic नहीं है. It's very easy. It's very very easy. हम लोग खाली copy paste कर रहे हैं. उसने तो अपना काम बना ही दिया है. Okay? But copy paste करना भी smartly copy paste कर रहे हैं ना? Okay? तो क्यों copy paste करना है? Because reason behind that. The second क्या है? Decrease the latency. Latency means मैं नहीं करता. तो latency means what? जो टाइम उसको सर्वर को विजिट करो, फिर एप्लीकेशन ढूंढो, फिर नेटवर्क डाल दो, और फिर देन एग्जीक्यूट योर एक्सप्रेशंस, देन सेंड दैट पर्टिकुलर थिंग. जस्ट सी कितना ये सब कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज वी आर प्लेइंग इन वन टास्क. मेनी थिंग्स. रिजल्ट फिर जाएगा सर्वर के साइड, फिर वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा. once ये executed the expressions, it will show or it will send the result. तो send result कहाँ पे जाएगा? HTML के पास. फिर DOM आएगा, documentary object model. फिर वो model के साथ उसको bind करना पड़ेगा, and then it will give what to the response to the client. ये पूरा all these steps cut. Why it is cut? Because cut down क्यों हुआ है? Because of this APIs we use it. समझ में आया इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट. सो दैट ऐसे ही रट्टा मारने के लिए नहीं दिया है. व्हाट डिक्रीज द लेटेंसी बिकॉज इट कट डाउन ऑल द स्टेप्स जो आपको उधर जाके देखना है. अगेन बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ डोम. मैंने कहा इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था इट्स अ टू वे डेटा बाइंडिंग. सेम पेज पे आप डेटा को भेज रहे हो, on the same पेज पे in a small period of time you are accessing the data. तो ही मिलेगा. The only two features why the AngularJS is very popular. The first one, what?
the dependency injection, the second is what, two-way data binding. ये नहीं है तो कोई नहीं यूज करेगा AngularJS. Again, why it is AngularJS and AngularJS, Angular and AngularJS में? Because again, this is very simple. See the HTML को ही हम लोग ने modify किया है ना? Angular, normal Angular, you want to use what, the TypeScript. ECMAScript. I asked you in the lecture, in the last lecture. Do you remember that ECMAScript? तो बोलते क्या है? तो पढ़ो बाद. TypeScript हम लोग use नहीं कर रहे. We are just taking what view here. See, if you remember MVC, model view controller. So that time model मैंने क्या बोला था? Data. View मतलब क्या? अभी लिसन carefully. View मतलब क्या? यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया. My controller open कर दो फाइल जरा. My controller फाइल open करो. See, whenever you are writing ng वाले कुछ भी, okay? So this is nothing but what? See, यहाँ पे व्यू कहाँ मिलेगा? मॉडल तो मिल गया, मॉडल तो मिल गया. कहाँ पे है मॉडल? हाँ, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यही प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे. सी, बॉडी टैग ng ऐप मैंने यूज किया है. तो दिस इज नॉट ओनली द एंट्री पॉइंट. एंगुलर का एंट्री पॉइंट नहीं है, बहुत सारा कुछ बता के जाता है ये. ओके, ng ऐप इज इंडिकेटिंग नॉट ओनली दैट दिस बॉडी टैग और बॉडी ऑफ दिस पेज यू हैव टू ट्रीट एज व्हाट, एंगुलर एप्लीकेशन. तो ये एक बेसिक तो बता के गया वो. ओके, दिस इज व्हाट द बॉडी टैग इज. व्हिच टैग? किसका टैग है ये? HTML का. ओके, we modified this HTML tag with the ng app. इसको ही बोलते हैं व्यू. समझ में आया? व्यू, बॉडी टैग और div टैग और इमेज टैग जिसके साथ बाइंड करना है उसके साथ आप ng के डायरेक्टरीज बाइंड कर सकते हो. दिस इज नथिंग बट व्हाट, व्यू. एंड क्या हो गया आपका? डेटा. फर्स्ट नेम है, एंटर योर फर्स्ट नेम. टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसमें जो नाम जाएगा वो क्या आप कर रहे हो? एफ नेम. दैट एफ नेम इज नथिंग बट द मॉडल. ठीक है. वी क्या है? ng ऐप. जो भी डायरेक्टरीज आप HTML के टैग्स को यूज, ये बाद में करो, HTML के टैग्स को आप यूज कर रहे हो इन विच वे? एंगुलरी वे. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्यू. अभी आज के लेक्चर में हम लोग कंट्रोलर लिखना सीखेंगे. इफ इट इज क्लियर ये CDN क्या करता है, ओके, HTML टैग्स कैसे बाइंड करना है, इफ इट इज क्लियर देन ओनली वी कैन राइट द कंट्रोलर. इट इज वेरी इजी टू राइट द कंट्रोलर. ओके, मेथड है, मॉड्यूल बनाओ फिर कंट्रोलर लिखो बस और उसको ऐड करो अपने एप्लीकेशन में. इट्स सो इजी. बट पता होना चाहिए मॉड्यूल क्यों लिख रहे हैं, पता होना चाहिए कंट्रोलर क्यों लिख रहे हैं, and then पता होना चाहिए why we include all these things in our application. Again, AngularJS, just remember before starting the actual code, just remember before going to the or moving to the next topic, it should be clear. क्या clear होना चाहिए? It is based on the MVC model. What is MVC model? Model View Controller. तो अभी मॉडल तो देखा हम लोग ने नेम करके, फिर से अभी देखेंगे. व्यू भी देखा, just now I explained you the HTML tags which we can use with the ng ऐप करके डायरेक्टरीज के साथ, तो वो व्यू बन गया. ये सब नो, इतना ही नहीं है. हाँ, whenever this data goes to my application ब्राउजर के पास, फिर वो मैनिपुलेशन होगा, एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटेड होगा एंड देन इट विल रिटर्न. तो भी वो डोम आता है बांध के, फिर डेटा आपको डिस्प्ले करता है क्लाइंट मशीन पे. सो दिस इज ऑल अबाउट व्यू. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड दैट एवरी टाइम योर डेटा विल नॉट गो टू द सर्वर. It will go only that much part which is needed to execute. Yes or no? If you remember that. अभी देखो यहाँ पे सर्वर विजिट हो ही नहीं रही है. क्यों? Because ये सब कुछ आपका कहाँ पे रन हो रहा है? क्लाइंट मशीन. कभी सर्वर मशीन पे जाओगे आप? कभी जाओगे? बोलो. जाना है कि नहीं जाना है? फिलहाल तो कैंटीन जाना है 11 o'clock. तो जाना है कि नहीं जाना है? जाना है. सर्वर साइड कभी जाओगे? डेटाबेस
डेटाबेस सिंपल। आपको कुछ तो चाहिए जो आपके, आप क्लाइंट मशीन में डेटाबेस रखोगे क्या? नहीं। आपके क्रेडेंशियल्स, ओके, आपके क्रेडेंशियल जो एडमिन के हैं, रूट एंड 1 2 3 जो भी पासवर्ड डालते हो वो क्लाइंट मशीन पे सेंड करोगे। यू विल सेंड दैट मच डेटा जो आपका क्लाइंट रिलेटेड है। क्लाइंट का पासवर्ड तो चाहिए ना, फिर आ जाता है ना, कहाँ पे आता है? सेशन एंड कुकीज। Yes or no? See how they efficiently word is very important. Efficiently they use what the memory, they use the client machine and they use what the application. एक भी is थोड़ा नहीं है कि चलो ये नहीं किया तो, it is not like that. Make it simple. Simple बनाने के लिए नहीं किया है application. It is actually how we can use the client machine. समझ में आया? तो ये ध्यान में रखो कभी भी, whenever you will start the front end मतलब कौन सा? AngularJS, React.js, इसके साथ काम करोगे, that time it is always think कि आपका मशीन कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है? on the client. It is not related to the server. डेटाबेस आप नहीं रख सकते हो क्लाइंट मशीन में, that's why नोड के साथ हम लोग को फाइल करना है। समझ में आ रही बात? Yes or no? Clear? ये clear हुआ है? What is the third point? CDN का third point क्या है? Increase parallel. Increase what? Parallel. क्या है? What do you mean by parallelism? तुम लोग सीख रहे हो ना डेटाबेस में? Distributed database सीख रहे हो ना? Parallel and distributed. Just read. This is not only because of 3 reasons, huh? Am I audible online? Thank God, finally I am audible. My screen is visible. Yeah, thank you. अभी मेरा lecture start. क्या है पैरेललिज्म? बोलो। हाँ? बहुत सारे रिक्वेस्ट पूरे दिन भर में क्या तो 1 by 1 कर सकते हैं, बट एट ए टाइम इट इज हैंडलिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। पैरेललिज्म वही है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इफ यू रिमेंबर देन। ठीक है, सो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? बोलो। बाय शेयरिंग द रिसोर्सेज। रॉन्ग आंसर। चलो, जो बोलेगा इसका आंसर हाउ इट इज पॉसिबल उसको डेरी मिल्क आज। Parallel मध्ये शेअरिंग ऑफ रिसोर्सेस करतो पण ते डिस्ट्रीब्युटेड। इथे काय आहे? इथे विचारतो मधु, भांडायचं नाही हा। चलो बोलो। यहाँ पे खड़े रहना रहता है, बॉयज उधर से जाना। यू गॉट माय क्वेश्चन? क्या पूछा मैंने? फिर से रिपीट करना ये करती। What is the third point? What is the third point? It is related. हाँ? Increase parallelism. ठीक है? So I have given you the hint. What is parallelism? This is nothing but what? Distributed computing, distributed database. Oh, so Madhu said what? Shared resources. It is one of. We can achieve the parallelism through the shared resources only. But यहाँ पे कैसे हो रहा है? How we can use what the increase parallelism. अभी यहाँ पे तो resources ही नहीं है ना, तो CDN नहीं, CDN है तो फिर भी चलेगा, but how we can increase. और मेरा क्वेश्चन और मैं क्लियर करके पूछती हूँ, how we can handle n number of multiple, लिखा है ना multiple request at a time, कैसे करोगे? सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगेन डोंट थिंक, मैंने हिंट तो दे दिया डिस्ट्रीब्यूटेड करके, बट डोंट थिंक इन दैट व्यू, थिंक इन द एप्लीकेशन। AngularJS के व्यू पॉइंट से ढूंढो, मिल जाएगा आंसर, डेरी मिल्क पक्का मिलेगा। किसी को आंसर बोलना है तो प्लीज बोलो, कोई बात नहीं है। ये लोग बोले, मधु बोले, कृष्णा बोले, वैसे तुम लोग आंसर अपना बोल सकते हो,
मे भी इक्का दुक्का डालते हैं ना डार्क गेम में, वो करेक्ट भी आता है ना, कभी कभी लगता भी है ना पेन डालना है, तो मेरा कभी भी नहीं लगता है। मैं डेरी मिल्क शेयर करा ऑनलाइन वाले कैन ऑल्सो गिव द आंसर। हाँ, डेरी मिल्क हम लोग खा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग जब आओगे तब मिल जाएगा। ओके, बट ऑनलाइन वाले ऑल्सो कैन आंसर, ऑनलाइन वाले ही आंसर करते सारे लेक्चर। माय क्वेश्चन क्लियर? गूगल पे नहीं मिलेगा, गूगल पे नहीं मिलेगा आंसर, आंसर अवंतिका मैडम ही देंगे। ओके, तुम लोग को कुछ सोचना ही नहीं है, जाने दो, वही सोच रहे हैं। You got my question clearly? हाँ? क्या? मल्टीपल थ्रेड से हो रहा है? नहीं, वो भी नीचे में है। एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड, फिर शेयरिंग द रिसोर्सेज, मल्टीपल सर्वर पे रखा है, तो दीज आर दिस आई विल नॉट करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर नहीं है, बिकॉज द mechanism is like based on that only, but it is not the correct answer. What I am expecting, that is not the correct answer. These are not the correct answer. परत एकदा सांगू, लिसन केअरफुली अभी, आता तू 2 वेळा डेअरी मिल्क द्यायचं, माझी किती एनर्जी लॉस झाली आहे। सी, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? If you understood the third point and if you understood my explanation, yeah, मैम डिफरेंट सर्वर सेम है बाळा, रॉंग है। क्लाइंट साइड आता तपशील सगळं नाही, डायरेक्ट याच्यावरच आहे ना। मग तुला म्हणायचं काय ते सांग, बघून म्हटलं तरी चालेल। Listen, मेरा क्वेश्चन क्या है? What is the parallelism? This is nothing but what we are sharing the resources. But now in our case, we are not sharing anything. Are we sharing the server पर भी शेयर नहीं कर रहे ना? तो what we are sharing here? चलो और बोल दिया मैंने, खुल के बोल दिया। What we are sharing? लाइब्रेरीज। ओके, फिर भी करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, लाइब्रेरीज मतलब वो पाथ पे चलो अभी। ओके, टेक दैट पाथ एंड चलो अभी आगे। सी, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी से क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी को डेरी मिल्क नहीं मिलेगा क्योंकि आंसर मैं ही बता रही। ओके, सब लोग एक एक डेरी मिल्क लाके दोगे मुझे। ओके, 5 रुपीज वाला भी चलेगा। सी, कितने आ गए? क्या बोला सकली? 10 मिलेगा क्या? 10 रुपए वाला? 10 ले। अच्छा, थैंक यू। ये तेरे को ये समझा और तूने आउटपुट डाला, तो मैं तेरे को 10 ये दे दूंगी। नाउ 100 रुपए बच गए। हाँ, 100 रुपए बच गए। मतलब नहीं करेगा। 100 रुपए बचाना नहीं है, उल्टा मैं दे दूंगी। Listen, Sakleen. See how we can achieve this parallelism. If you remember, I started my lecture. What? This is nothing going to the server. वो client machine use कर रहा है। एक client ने भेज दिया, उसी के साथ करेगा क्या? Execution. इसने भेज दिया, उसी के साथ। आपका सर्वर नहीं तो रिसोर्सेज बिजी है क्या ये दोनों के साथ? No. We are using efficient way of the client machine. If you remember, आप रिसोर्सेज कौन से यूज कर रहे हो? क्लाइंट। मशीन कौन से यूज कर रहे हो? क्लाइंट। डेटा किसका यूज कर रहे हो? क्लाइंट का। वो सेंड कर रहा है ना, द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट। मधु नाहीये त्याच्यामध्ये। ओके, समजलं तुला? ओके, so what we are sharing, we are nothing, we are not sharing anything. Even though we are not sharing what the server, क्लाइंट मशीन ही यूज कर रहे हैं। डेटा कौन भेज रहा है? इसका डेटा इसके साथ, उसका डेटा उसके साथ, मेरा डेटा मेरे साथ। सो आई एम यूजिंग माय डेटा ओनली, आई एम यूजिंग माय मशीन ओनली, आई एम यूजिंग गूगल APIs which are installed, which are connected CDN through on the client machine. So taking performance time जो इसका स्पीड है उसी हिसाब से मिलेगा। I'm not sharing anything. बोला है parallelism, attempting what? Multiple requests. क्योंकि मुझे तो आपके साथ शेयर ही नहीं करना है कुछ भी रिसोर्सेस। आप अपना खुद ही डेटा दे रहे हो मुझे, आप अपनी खुद की मशीन दे रहे हो मुझे। ओके, बट व्हाट आई एम शेयरिंग ओनली गूगल API। वो मैं मेरा एप्लीकेशन नहीं दे रहा है,
वो गूगल ने बनाया, वो आप शेयर करो। सी द सिंपलिसिटी ऑफ द कोड। समझ में आया है क्या? क्या मुंडी हिला रहे हो ऐसे ही? समझा? सो पैरेललिज्म जो भी है, efficiently we are using the client machine, and that's why multiple requests we can handle, n number of requests, क्योंकि if I'm sharing my resources, ये resources, इसके resources मुझे share करना है, for example, okay, तो 10 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा तो साइमल्टेनियसली नहीं, वन बाय वन जाएगा ना, एट ए टाइम थोड़ी जाएगा। एट ए टाइम जाने वाला है क्या? नहीं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज बेस्ड, हाउ आई एम सिलेक्टिंग, आई एम गिविंग द प्रायोरिटी विच वन क्रेडेंशियल्स मैच करना है तो उसको प्रायोरिटी पहले दे दो, फिर उसके बाद एक्सेस दे दो। आई एम सेटिंग द प्रायोरिटीज। सेकंड, आई एम सेटिंग व्हाट, टाइम स्टैम्प। समझ में आया क्या? इसके ही बेस पे शेयर कर सकते हो ना रिसोर्सेज, क्या आओ जाओ अपना ही घर है? नो, you have to give the credentials. If you are hiding, the first preferences. If you are user 1, user 2, second preferences or last preferences. समझ में आया? So we are not sharing application. इसलिए मैंने कहा कि CDN proper read करो, समझा तो नहीं Angular जैसा समझेगा। Otherwise, NG मैम ने क्या बढ़ाया आज? 14 प्रैक्टिकल्स, सॉरी 14 डायरेक्टिव्स बनाए, चलो एक ही इसमें डालो, कॉपी पेस्ट करो, उसको ही मॉडिफाई करो। How it is working? If I am saying that, the same person saying that, it is not providing you what? The control statements. है ही नहीं कुछ control statements. We can't use the switch, do, while, for loop, if else नहीं use कर सकते. But instead of that, just try to understand this sentence properly. Instead of that, they provide you AngularJS provides phone review character. Okay, so this is what the reason. We are not sharing anything, and that's why we can achieve the high performance time. Same machine पे आपका जा रहा है. We are not sharing the resources. Is it clear? Is that clear? And the one reason. See, if you are using control statements, आप control statement use कर रहे हो, तो control statements use करते time, what do you have to do? What do you have to do? सपोज आपने if else लिखा, कोड वगैरह लिखा, फिर आपने स्विच केस वाला कोड लिखा, तो कहाँ पे जाएगा वो? क्लाइंट पे मशीन पे जाएगा क्या? क्लाइंट मशीन पे जाएगा, तो क्लाइंट मशीन में वो एप्लीकेशन होना चाहिए ना? यस और नो? C++ है तो C++ का कंपाइलर चाहिए, क्योंकि आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। यहाँ पे डायरेक्टिव्स दिए हैं। Okay, see the importance of the directives. ng if, ng show, ng switch, ng hide, ये आपको खाली इंक्लूड करना है। That's why उसका जो भी कोड है वो क्लाइंट मशीन में जाएगा डेफिनेटली, बट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? गूगल एपीआई। mean dot angular mean आपने ओपन किया होगा, and then see this miniature of what the small functions they included. mean फाइल में है ना? है कि नहीं? क्या बकवास बोल रही हूँ? नहीं, यहाँ पे है मीन फाइल। ऑल दोस फंक्शंस है, सेम फंक्शंस मीन फाइल में है, सेम फंक्शन गूगल एपीआई पे है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर द ढूंढना। अभी इसको क्या ढूंढना है? सर्वर नहीं ढूंढना है, उसको कंपाइलर ढूंढना है, तो वो ढूंढे। ढूंढेगा ही नहीं, बिकॉज कंपाइलर है ही नहीं उसके पास। क्या वो विद गूगल एपीआई, वो अपना इन्वायरमेंट उसके साथ ही भेजता है। कितना इजी है देखो। What you have to do as a developer, full stack developer, what you have to do? You have to write the code. You have to use the directives in such a way that efficiently वो code run होना चाहिए। जो AngularJS का documentation file पे जाओगे ना, visit the AngularJS file, फिर documentation, they will give, you will get it proper syntax. वो syntax use करके you have to write your own code. Everything they provide you. You have to just use that in a creative way. जितना creative लिखोगे उतना job मिलेगा। Full stack developer. Same code मैं ही use करी। See, because the reason behind that ng-show I am also using, ng-show she is also using. What is the difference between these two? Because I am using in a simple way, she is using in a smart way. समझ में आया? तो फिर इसको हायर करेंगे, मुझे नहीं हायर करेंगे। बिकॉज उनको भी पता है लिमिटेड रिसोर्सेज दिया है, डायरेक्टिव्स लिमिटेड है। आप अपनी क्रिएटिव C++ में दिखा सकते हो, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज नॉट, इट इज अ फ्रेमवर्क।
It is already provided, it is already created. Okay, and you have to use it. समझ में आया? Clear? तीनों points clear? Okay, clear? चला move ahead. Okay, अभी क्या करना है? We have to just pay. अभी देखो हम लोग अभी के प्रैक्टिकल में 10-5 हुआ है ना, चलो ज्यादा जितने ज्यादा हो सके उतने डायरेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे. सो विल गो विद द फर्स्ट वन. कौन सा फर्स्ट वन है? एनजीआर. तो हम लोग को पता है एनजीआर कैसे लेना है. एनजी मॉडल ऑल्सो वी नो, बट एनजी मॉडल के साथ हम लोग एक्सप्रेशन यूज करके क्या करेंगे? अपना डेटा दिखाएंगे. ठीक है, तो सिंपल आप HTML लिखो, कोड HTML हेड टाइटल लिखो फटाफट. ओके, एंड इंक्लूड दैट फाइल, SRC फाइल इंक्लूड करो. ओके, इतना फाइल लिखा है, इतना लिखा है. सो वेरी सिंपल. HTML फिर हेड टाइटल. अभी टाइटल नहीं ऐसे दिया है, डायरेक्टली नेम दिया है. आप अपना टाइटल कोई भी दे दो. डायरेक्टिव्स इन एंगुलर जैसे भी डाल सकते हो. ओके, टाइटल कैन बी एनीथिंग. स्क्रिप्ट SRC और उसके बाद फिर आप फाइल इंक्लूड करोगे. गूगल API से लिसन, ये गूगल API आप कॉपी पेस्ट करके रखोगे तो भी चलेगा किसी फोल्डर में. अभी सपोज मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, नेक्स्ट प्रैक्टिकल यहीं पे बैठे हो, तो यू नो ना, यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल. ओके, फोल्डर बना दो. डन? हाँ, डन. म्यूट आहे का ग? अनम्यूट आहे ना? हाँ. पूर्वा मी ऑडिबल आहे का? स्क्रीन पण दिसते माझी? Ma'am, screen is visible. Look at the code, what I am writing. I am just taking what? Body tag. Now see, this can be bind with any directives can be bind with any tag. तो पहले div लेते हैं, अभी हम लोग body tag को ही enhance करेंगे. So body tag के अंदर we will just open ng-app. लिखते टाइम आपको मन में बोलना है which tag you are using, which directives you are using. तो रट्टा मारो कोड नहीं हो जाएगा. Okay, body ng-app. Okay, now this. Okay, so this ng-app is nothing but what? It will tell my browser this is nothing but what? Simple HTML code, not. It is Angular code. You have to treat this entire code as what? Angular JS के हिसाब से. Okay, so Angular dot. Even though suppose if you included script SRC, Google APIs जो ऊपर मैंने include किया है. So if you included and if you written the code in which way? HTML. तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. It will show you the output. Simple वाला एक कोड लिखो HTML का. Text box एक create करो. Enter your name and text box ले लो. Simple कोड एक बनाओ. टेक्स्ट बॉक्स का एक कोड बना दो. मैम मैंने किया अभी. क्या किया है क्या? यस मैम. वेट, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वालों का भी है. वेट. So what you will write? Input. Look at. If you don't know how to write, just look at my screen. So मैंने क्या लिया है? एक लेबल लिया है. Enter your name and then input type is equal to what? Text. Okay. Simple. बस. Did I close and then close what? Your. इतना ही करो. रन करके फाइल देखो क्या हो रहा है. रन करो. ब्राउजर पे रन करो. तिकडे विभा नेट आहे का ग? हे पण ही फाईल कर रन. API फाईल दे ग तिला कॉपी. पेन ड्राइव आहे विभा तिकडे फोल्डर.
टाइप किए वो रन कैसे होगा? हाँ, वो रन तो वैसे भी नहीं होगा ना। होगा यहाँ पे वैसे करेगी ना। तिकडे ना MCA सॉफ्टवेअर असेल बघ. कुठे कुठल्या डिरेक्टरी मध्ये आहे MCA सॉफ्टवेअर? हा, त्याच्यामध्ये बघ mean.js फाईल त्याचा ऍड्रेस दे. क्या रन सिंपल रन किया, HTML एंटर योर नेम और फिर टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. अभी देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अभी इसमें इफ आई वांट टू सेंड द डेटा, लुक एट द कोड. पहले रन करके देखो, सब लोग रन करो, वो ब्राउजर पे रन करो आपकी फाइल विदाउट एनी ng-app मत यूज करो. नॉर्मल कोड HTML का आई एम आस्किंग यू नॉर्मल कोड. एनजीआर नाही यूज करायचं ना. फोल्डर है ना VS Code वाला. जोपर्यंत तू त्याला अँग्युलर मीन देत नाही तोपर्यंत. रन किया तुम लोग ने? जानबूझ के ये रन करने की बोल रहा है. इट्स वेरी सिंपल. What exactly it will, how it will execute? Simple लेना है. Enter your name. Okay, let's enter your name. What it will do? What you want? By the way, if you put the enter or you enter the data in the text box, तो जाएगा क्या अपने आप? तो आपको क्या चाहिए? हाँ? Button मतलब क्या? Button is what? Button is what? एक्शन. इनपुट भी नहीं. बटन इज इनपुट. तो डेटा क्या है? बटन. एक्शन नहीं बजा. बटन इज नथिंग बट ए कंट्रोल है ना. वो डेटा का एक कंट्रोल है, वन ऑफ द कंट्रोल. अब वो कौन से कंट्रोल मिलती है HTML में? बटन मिलता है और रेडियो बॉक्स, शेल बॉक्स. अभी आ गया. ठीक है, तो these are the controls. Suppose now listen now, normal HTML या ब्राउजर से ही एग्जीक्यूट हो रहा है, but we require some control. Yes or no? तो क्या कंट्रोल लोगे आप? बटन वाला. सबमिट, फिर आप डालोगे और फिर वो डेटा जाएगा, राइट? अभी ये सब सारे ये all these steps skip. अभी क्या कर रहा है? हम लोग ले रहे हैं ng-model. This is what ng-model will bind my data. Okay, it will take my data without using control. समझ में आया? Okay, अभी लिखो तो कोड के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है. स्पेस दो. ng-model. ng-model. हे बघ केलंस का ग तू? नको ने, तुला ती फाइल आहे ना, तीच कॉपी पेस्ट कर. हाइफन मॉडल. अभी ये डेटा को आप क्या करके बुलाओगे? तो मैं बोल रही हूँ एफ नेम. मुझे बुलाया. ओके, एंटर योर नेम, फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट. समझा ये? ओके, ng-model एफ नेम. और देखो एंटर करो. नाउ यू नो द एक्सप्रेशंस. यस और नो? तो आप एक्सप्रेशंस लेके आप उसको बोल सकते हो. मुझे यहाँ पे वेलकम करो, एफ नेम को दिखाओ. समझ में आया? यू कैन शो इन दिस वे ओनली, बट अगेन ये इजी नहीं आएगा. इसके लिए मैंडेटरी क्या है? गूगल एपीआई एसआरसी में कोई ये जाके ओपन होगा. सेकंड, व्हाट इज द सेकंड मैंडेटरी थिंग? सेकंड मैंडेटरी थिंग, आपको ये पूरे कोड को व्हाट यू हैव टू ट्रीट एज अ एंगुलर जेएस फाइल. यू हैव टू ट्रीट.
तो आप क्या बोलते हो, ng-app। ये दो डायरेक्टली नोट डाउन करो पेपर में, पेपर पे नोट डाउन करो, ng-app, ओके, एंड ng-model। सकलीन तू परफॉर्म कर प्रैक्टिकल। आ गया क्या आंसर? फिर धमकी दे रहा है तो तू मुझे। नाउ द थर्ड डायरेक्टरी, फर्स्ट वाला क्या, लिसन, फर्स्ट वाला क्या, ng-app मैंडेटरी है, yes or no? ng-app के बिना आपका एप्लीकेशन ट्रीट नहीं होगा एज अ एंगुलर जेएस फाइल। व्हाट इज द सेकंड मैंडेटरी थिंग? अभी देखो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, कल मेरा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, मिनी प्रोजेक्ट का है, वो 2 लेक्चर्स मैं ले रही हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, बिना बोले आपको ये 2 चीजें करना ही है। फर्स्ट वन, स्क्रिप्ट एसआरसी में, ओके, मैं नहीं बोलूंगी और फिर मुझे वहां पता है मैम आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, मैं आके देखूंगी एसआरसी फाइल नहीं है तो 2 फिर उसके बदले आप मुझे 2 चॉकलेट दो। तो ये आपको करना है। व्हाट इज द मैंडेटरी स्क्रिप्ट एसआरसी फर्स्ट, हाँ बरोबर। सेकंड क्या है, आपको कौन से डी में डालना है, बॉडी टैग में डालना है, सिलेक्शन में डालना है, रेडियो बॉक्स में डालना है, चेक बॉक्स में, जो भी टैग के अंदर ट्रीट करना है कि दिस इज यू हैव टू ट्रीट एज अ एंगुलर जेएस एप्लीकेशन, वहां पे डालना है आपको एनजीआर। मान लो आपको बॉडी टैग, पूरा बॉडी, द पेज की बॉडी है, उसको नहीं ट्रीट करना एज अ एंगुलर, ठीक है, कोई बात नहीं, div ले लो, div के अंदर एनजीआर डालो। इज इट क्लियर? 2 थिंग। थर्ड क्या लिया है हम लोग ने, एनजी मॉडल, मतलब नाम देने के लिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, एनजी मॉडल इज व्हाट, एफनेम। अभी बाइंड करो वो एफनेम के साथ, किसके साथ, एनजी मॉडल एंड एफनेम, ng model is equal to fname and run this on the browser. विभा आलं का ग तुझं आउटपुट? कसं येणार ती फाईल इन्क्लूड कर मी in.js कोणाकडे असेल ती दे ग, गुगल एपीएस वाली फाईल। रन करो फाइल को, सेव इट एंड रन इट, इन दिस वे वी हैव टू राइट। आ गया क्या, लिखो उसके अंदर, आ रहा है, वेरी गुड सकलीन, वेरी गुड। अभी थोड़ी दे दूंगी कल, गुड गुड। हाँ हाँ, डबल पैरेंथेसिस आ रहे तो फिर गलत है थोड़ा। दोन घेतले ना आपण, त्या ह्याच्यामध्ये पण घेतले, पॅरेंथेसिस मध्ये पण घेतले ना, म्हणून कुठली लिंक मिळालं तुला ते? दिसते का सेटअप कर? ए पूर्वा, पूर्वा जरा अंकिताला सांग मेल चेक कर आणि अर्जंट प्लेस कर प्लेसमेंटच्या वरती। अदानीचं शेड्यूल मॅमनी पटकन ड्राईव्ह वरती त्यांचे इंटरव्ह्यू आता आहेत। कॉल करूनच सांग। होगा तू मैनेज कर जरा। आ गया क्या, बाइंड हुआ? नहीं बाइंड हुआ तो फिर बताओ मुझे, नहीं बाइंड हुआ है तो दिसते तुम्हाला आता फॉन्ट मधून? ओके, 2 आंसर्स आएंगे, एक तो एमजी बाइंड हम लोग किया है इसीलिए एफनेम आएगा, और नेक्स्ट अगली बेसिस में भी
Yes or no? तो दो आंसर मिलेंगे। मैम नहीं आया है वो मुझे बताएं। मैम मैम कोई आवाज दे आप। हाँ बोलो। मॅम स्क्रीन शेअर नाही झाली हाँ आहे, बोलो। स्क्रीन शेअर नाही झाली आहे। हाँ थांब थांब। हो कर लो कर लो। कॉपी पेस्टच करायचे मी बात उसको कंफ्यूज मत कर क्या बोल रहा है। कॉपी पेस्ट कर। एग्जाम क्यों दे रहा है अभी, एग्जाम थोड़ी लगने वाला है। वो बेचारी कंफ्यूज होके सुन रही है तुझे सीरियसली। बताओ तू कंफ्यूज कर रहा है। मत घे खाली अँग्युलर घे। एग्जाम लागेल पण थोड्या वेळाने लागेल। गिल्लो का आउटपुट नहीं आया है। बाइंड अंडरस्टैंड ना, बाइंड भी अंडरस्टैंड करो और मॉडल भी अंडरस्टैंड करो। एनजी मॉडल एंड एनजी बाइंड आई यूज दिस टू डायरेक्टरीज इन अ वन एप्लीकेशन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक हटा दो, बाइंड हटा दो, फिर भी आउटपुट आएगा। एनजी मॉडल हटा दो, फिर भी आउटपुट आ रहा है। क्या देखो क्वेश्चन समझा मेरा? हाँ है बस हटाने के बाद आज नेट आहे, आज आपण फाईल डायरेक्ट व्हॉट्सअपला हे करूया. माइंड एंड मॉडल। चलो बोलो। एक सांगितलंस का? मॉड्यूलमध्ये आपण इनपुट करतोय ते त्याला फेच करतोय आणि ते डिस्प्ले करण्यासाठी आपण एनजी मॉड्यूलला एनजी बाईंड सोबत कंबाईन यहाँ पे आ गया। किसी का नहीं आ रहा है प्लीज मुझे बुला दो। और जिन लोग के आउटपुट आ गए जस्ट टेल मी द आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनजी बाइंड एंड एनजी मॉडल? और कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर बैग उठा के आपको बाहर जाना है। ठीक है? विदाउट एनजी मॉडल हमारा आउटपुट नहीं आएगा। एनजी मॉडल जस्ट ट्राई टू पहले ना आंसर देने से पहले एग्जीक्यूट करके देखो। जस्ट ट्राई इट। हटा दो एनजी मॉडल, हटा दो एनजी बाइंड, हटा दो, दोनों भी साथ में हटाओ मत। फर्स्ट रिमूव व्हाट द एनजी मॉडल एंड ट्राई फॉर विद द एनजी बाइंड। फिर एनजी बाइंड हटा दो एंड देन ट्राई कीप व्हाट एनजी मॉडल।
क्या है रहने दो। पूछा नहीं क्या उसको? इसका कोड रॉन्ग करना है, तो ये वाला कोड देखो। असं थोडी नेमिंग करतो आपण, हायफन टाकतोय तर ऑलरेडी त्याच्याकडे हायफन लिहिलं त्याने डेरिव्हेटिव्ह मध्ये. हे सांगितलं अंकिता. अर्जंट सांग तिला. आलं विभा, आलं का शेवटी तुला? तुम्हाला एक पाहिजे हे करणे बेसिस मध्ये येतं ना, म्हणजे ती पाहिजे मी पाहिजे आहे ना इम्प्रूव्हमेंट, त्यासाठी आपल्याला नेट वापर कॉपी आया? क्या हटा सकते हैं हम लोग? बाइंड हटा सकते हैं, वेरी गुड. क्यों हटाना है और क्यों रखना है? गूगल है, नेट है ना, नेट है ना, नेट नहीं है. सर्च करो ng bind and ng model. सर्च it. कंट्रोलर पढ़ते हैं. मधु ऐक ना, मधु काय करते? ए काय करते? काय करते?
स्विच करना है तो स्विच करना है. अच्छा क्या हटा सकते हो क्या रख सकते हो दोनों भी रखना है क्या how many agree with this दोनों भी रखना है is it mandatory to keep all both the directory ng app and ng control model दोनों भी रखना है दोन्ही पण पाहिजे. हटाना कौन सा है नाही होणार ना ते एक्सप्रेशन होऊ शकतं. जर तू NG वाईन काढला आणि जर एक्सप्रेशन ठेवलं ना तरी पण ते प्रिंट होणार. कौन सा हटा सकते हैं नीचे वाला एक ही है. एक ही अच्छा है डिसेंट है डिसेंट मिसेंट में नहीं जाना है अच्छा विचा नहीं चाहिए लॉजिकली बोल which one is mandatory and which is optional NG model is mandatory why NG model is mandatory yes the input which is given by the user that will hold or that will take it by the NG model directly. Okay, NG bind is optional because if you want to show that जो भी डेटा लिया है NG मॉडल का वो शो करना है then you will bind that NG binder. Optional कौन सा है NG binds. Okay, NG model is mandatory. आप जो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा ले रहे हो that should be bind with your variable name. Which is the variable name in our case? fname. तो आपका डेटा जो भी आप डालोगे सकलीन अवंतिका मधु that will bind with the fname variable. Are you getting me? Yes or no? So which one is mandatory? NG model is mandatory. NG bind is optional. If you want to bind, then you can bind. ठीक है? चलो अभी थर्ड वाली फाइल ओपन करो. ये हो गया ना NG bind. How many directories just now we have seen? NG app, NG model, NG bind. Okay? अभी थोड़ा कंट्रोलर पढ़ते हैं. NG hyphen controller. ठीक है? कंट्रोलर बनाएंगे. फाइल मुझे नहीं चाहिए उसमें करेक्शंस नहीं चाहिए न्यू फाइल बनाओ कंट्रोल माई कंट्रोलर डॉट HTML माई कंट्रोलर डॉट HTML हा काही नाही डिफरन्स जर तुला सेम ऍप्लिकेशन मध्ये ती फाईल डाउनलोड करूनच ठेवायची आहे ना तर ती mean.js फाईल येतात पण जर तुला गुगल API CDN वापरायचं असेल ना तर ती SRC मध्ये गुगल API
आणि थर्ड ऑप्शन आहे क्लाउड वरती. जर तुझ्या कंपनीचं TCSचं क्लाउड आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी ती फाईल ठेवली आहे तर तुला तिकडचा ऍड्रेस लागेल ना. CDN म्हणजे कंटेंट डिलिव्हरी नेटवर्क. म्हणजे तुला जे API चे सगळे जे गुगल अँग्युलरचे फंक्शन्स आहे ना ती फाईल देणार. म्हणून तुझं ते कर्ली ब्रेसेस मध्ये येत होतं. कारण त्याला ते फंक्शनचं त्या कर्ली ब्रेसेसचं मिनिंग काय आहे ते ह्या फाईलमध्ये कळतं. म्हणून ती फाईल इन्क्लूड करायची. किंवा NG ॲपचं डेफिनेशन त्यांनी ह्या फाईलमध्ये ठेवलंय. ती मेन फाईल ओपन कर म्हणजे तुला छोटे छोटे फंक्शन्स दिसतील सगळे त्याच्यामध्ये. तसं डाउनलोड केलं की त्याच्यावरती डायरेक्ट पेज ते तसं होतं. थँक्यू बोलते. चलो ध्यान दो यहाँ पे. अभी स्क्रीन पे ध्यान दो. अभी देखो. फाइल ऐड करो. NG ऐप लिखो. दिस इज माय डेमो फाइल. यहीं पे कोड लिखते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑल योर बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू क्रिएट. क्या किया है? HTML हेड टाइटल, देन स्क्रिप्ट SRC में आपकी फाइल इंक्लूड की, देन SRC टैग क्लोज, सॉरी स्क्रिप्ट टैग क्लोज, देन योर बॉडी टैग स्टार्ट ng-add. ओके ध्यान दो यहाँ पे. Now this is the basic things we required ना. इसके बाद अगला कोड स्टार्ट होगा. So what we have to write? See, you can't write the controller as it is. पहले the first of all we have seen what a model. Okay, ng model, ng bind, then view means presentation. Now we are writing what the controller. Controller is nothing but what? It is a function. It is a function which is having their own object. अपना object create नहीं करना है. There is a dollar scope object. It is dedicated for the function. Now function कौन सा function है ये? Angular का function नहीं है. It is a JavaScript function. समझ में आया? तो कैसे लिखते हैं वो देखो पहले. First line, suppose I want to create a modular or controller, तो पहले उसके पहले मुझे module लिखना पड़ता है. So how to create a module? Very simple. Var app is equal to angular.module into bracket. फिर आपका module name and your empty bracket. So this is the syntax of writing the code. क्या पहले आपको ऐप बनाना है. कौन सा ऐप? सी मैंने ब्लैंक रखा है ना. ng-app. अब तक हम लोग ने ब्लैंक रखा था ना. ओके नाउ सी you can write, you can say it's an application, you can say it's an app, or you can say it's a module. All three same. समझ में आया? I repeat, just listen carefully. करो मत. Okay? What I say? ng-app. अभी यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना बनाएंगे. तो आप ऐप बोल सकते हो. You can say module. Okay? You can say ng-app और sorry ng-app. तो अपना मॉड्यूल भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो. Better to speak, better to talk और better to speak what app. Okay? मॉड्यूल बनाया तो गलत नहीं है. मॉड्यूल इज द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. सिंटैक्स क्या है देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो. यहाँ पे सिंटैक्स क्या है. और एक टैग लेंगी मैं यहाँ पे. ओके दिस टैग आफ्टर द हेड और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी where इज इक्वल टू ऐप. ओके इक्वल्स टू मैं बोल रही हूँ एंगुलर डॉट मॉड्यूल फिर ब्रैकेट. सी द मोमेंट यू राइट दिस एंगुलर डॉट मॉड्यूल और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस सॉरी राउंडेड ब्रेसेस दोगे तो कलर चेंज हो गया ना. मॉड्यूल का कलर देखो अपने पीसी में करो. ओके मॉड्यूल का कलर चेंज हुआ बिकॉज इट्स अ मेथड. मॉड्यूल इज अ मेथड व्हिच इज व्हाट प्रेजेंट इन द एंगुलर. ओके तो ये मेथड क्या करेगी? इट विल क्रिएट योर एप्लीकेशन. ओके इट विल क्रिएट योर मॉड्यूल.
समझ में आया है क्या? ये लाइन समझ में आई? बार ऐप इज इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल और फिर राउंडेड ब्रेसेस. द मोमेंट यू पुट द राउंडेड ब्रेसेस, ओके, सो द कलर विल गेट चेंज ऑफ मॉड्यूल. तो मॉड्यूल का कलर चेंज हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ मेथड. मेथड समझते हो ना? हेलो, मेथड समझते हो ना? हाँ, तो मेथड है, ये फंक्शन भी बोल सकते हैं. मेथड फंक्शन सेम है. Oops वाले में मेथड है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस. ठीक है, यू कैन से एनीथिंग. एंगुलर डॉट मॉड्यूल, अभी उसके अंदर दो पैरामीटर्स यू हैव टू सेट. लिसन केयरफुली, आना चाहिए लिखना, कॉपी पेस्ट मत करो, इजी है, लिखना आना चाहिए खुद. सो एंगुलर डॉट मॉड्यूल के अंदर टू पैरामीटर्स पास करो. एक है आपका ऐप का नाम, दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेसेस. ओके, एम्प्टी चाहिए वो. ठीक है, करो अभी. एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन वाले, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम. Yes, ma'am. स्क्रीन भी विजिबल है ना मेरी? Yes, ma'am. Okay. So this is what my app. My app first parameter. What is the my app here? It is the name of my module. It is the name of my application. समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? So it is a name of my application, my app. And what is the common empty bracket? Empty bracket suggesting that you are going to define. हम लोग लिख रहे हैं ना कोड, हम लोग बनाने वाले हैं, कंट्रोलर हम लोग बनाने वाले हैं. That's a empty bracket. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? दो पैरामीटर. फर्स्ट पैरामीटर योर नेम ऑफ व्हाट, योर नेम ऑफ योर ऐप. सेकंड पैरामीटर इज व्हाट, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट. इसका डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स है, लिखना नहीं है कुछ भी उसके अंदर. ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ. तो अभी माय ऐप क्या, अभी हम लोग ऊपर कहाँ पे बॉडी टैग के अंदर एनजी ऐप लिखा है ना, एनजी हाइफन ऐप. अभी क्या लिखोगे? इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रेसेस लिखा है, उसके अंदर आप क्या डालोगे? माय ऐप, योर एप्लीकेशन नेम. समझ में आया? सीक्वेंस समझ में आया? हेलो, चलो लिखो, या इधर डालो माय ऐप. ठीक है, डाल दिए. अभी आपने सिर्फ क्या बनाया है? एनजी ऐप, ओके, एंगुलर मॉड्यूल एंड आपका एप्लीकेशन. स्टिल देयर इज नो कंट्रोलर. ठीक है, अभी कंट्रोलर पहले बनाते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या यूज करता है. ओके, जैसे सीडीएन फाइल कैसे हम लोग ने यूज किया, देन वी हैव गो एंड जस्ट रीड द सीडीएन वाले कोड का क्या बेनिफिट है. तो यहाँ पे where app is equal to angular.module, two parameters we want to pass in that method, my application name or my module name, and the second one is empty bracket. Why the empty bracket? What is the reason behind that? Vishal, what is the reason behind that empty bracket? empty bracket module name नहीं है. empty bracket क्या है? definition आप लिखने वाले हो, और मॉड्यूल नेम क्या है आपका? चलो, अभी आपने ऐप बनाया, इधर आ जाओ. ऐप, ठीक है, डॉट, अभी देखो लिखोगे कंट्रोलर. ठीक है, ऐप डॉट कंट्रोलर इनटू ब्रैकेट. अगेन टू पैरामीटर यू हैव टू पास. फर्स्ट पैरामीटर नेम ऑफ योर कंट्रोलर, सेकंड पैरामीटर फंक्शन, ये कंट्रोलर क्या करने वाला है. ठीक है, so first parameter is always name of what your controller, name of your app. करो. ओके, सेकेंड पैरामीटर आप लिखोगे फंक्शन इनटू ब्रैकेट, उसका ऑब्जेक्ट लोगे डॉलर स्कोप. ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन लिखोगे. हाँ बोल. चेंज नाही झाला. ठीक आहे, बघूया आपण. तू कर तरी. ऍप डॉट ऍप हायफन नाही आहे ती एपीआय फाईल घ्यावी लागेल.
नेट बंद आहे आणि तिने मेघाने नाही बनवलं. तिला मी कॉल करून इन्फॉर्म करू का? कर ना. कारण ती आणि हिला सांग, अंकिताला सांग, त्या मुकेश वर्मा डिबार असेल आणि अंजली प्रजापती डिबार असेल तर त्यांना सांग नको जॉईन करू. Okay, app.controller. First is what? My controller. It is the name of my controller. Second is a function with the dollar scope. जिन लोग के color change नहीं हुए, I'll come there and see. Okay? But again, type the code as it is. Function dollar scope. अभी ये dollar scope क्या करेगा? It is allow you to access. See कितना simple है देखो. It is allow you to access. डॉलर स्कोप. अभी आप बोलोगे सपोज मैं ले रही हूँ नेम, फर्स्ट नेम ले रही हूँ, तो मैं फर्स्ट नेम लूंगी इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैन पास द वैल्यू और आई कैन पास द वैल्यू थ्रू माय HTML कोड. ओके, तो मैं यहाँ पे कोड यहाँ पे एज इट इज रख रही हूँ. आई विल नॉट पास, बट इफ यू कैन पास इट इफ यू वांट. ओके, फिर दूसरा लिया डॉलर स्कोप. आप कितनी बार भी यूज कर सकते हो. नो नीड ऑफ डिफाइनिंग द वेरिएबल. नो नीड ऑफ डिफाइनिंग द वेरिएबल. ओके, जानबूझ के मैं बहुत सारे वेरिएबल्स लेने वाली हूँ ये प्रैक्टिकल के अंदर. ओके, अगेन आई एम टेकिंग वन डॉलर स्कोप डॉट एज और मोबाइल नंबर. Once you create this controller, first save कर. Okay, save कर. ठीक है. Once you create it properly, save it. अभी भी बहुत कुछ करना है. We just created the controller. Now we have to use this controller in our HTML tags के अंदर. तो आप HTML के body tag के अंदर यूज करो ng-controller करके and you is equal to name of the controller. करो यूज. सेमीकोलन लास्टला सेमीकोलन. Okay. Now, once you complete this, आई थिंक सो मैम का कनेक्शन चला गया. स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मैम. हो रहा है बेटा, यू रिप्लाई करो. झाली. ओके, अभी जस्ट राइट डाउन, एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंटर योर लेबल बना दो, टेक्स्ट बॉक्स बना दो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और स्पेस करके लिखोगे ng-model fname.
आमचं मॅथ्स आणि पीएच आहे. साधना मॅम नाही तर खाजगी मॅम. दोनच आहेत. 2 मॅथ्स आहे तुमच्याकडे. मग मी थोडं एक्सटेंड करू का? ब्रेक थोडा लेट देऊ. थोड्या लवकर 11:30 मैथ्स नहीं है. सर किधर है? चालू करेंगे कहाँ से? हाँ? मला ते दिसलं नाही सकाळी. आलेत का? आता सर बोलले की नाही येणार आहेत म्हणून. अरे हाँ सातम सर बोल रहे ना नहीं है. तो नहीं है तुझे तो फिर मैं थोड़ा ले लूँ क्या, कंटिन्यू करूँ क्या? नहीं है तुम लोग का. नाही मी ब्रेकच्या नंतर जाते हाफ डेला. अरे हा मला हाफ डे मी सकाळीच जाणार होते पण मी आज लेक्चर घ्यायचं म्हणून मला वाशीला जायचं. ये वाला ट्राई मत करो. हाँ अनदर वन एग्जाम्पल अनदर माई कंट्रोलर का. यू वर्क विथ जो अपने में बाइंड करो मॉडल के साथ. यहाँ पे लिखो, देखो मैं लिख रही हूँ वैसे. एंटर योर फर्स्ट नेम फिर उस मॉडल के साथ बाइंड करो एंड देन एफ नेम को शो कंट्रोलर के साथ. विभा तुझं काय झालेलं? नाही आलेलं. चालेल कंट्रोलर सोबत कसं अभी मॉडल समझा है ना. एनजी मॉडल बस वही वैल्यूज लो. टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यूज लो. एनजी हाइफन मॉडल बाइंड मत लो अभी इसके केस में. याच्यामध्ये आपण पण टाकू शकतो ना मेन लेन्सची वगैरे. याच्यामध्ये आपण टाकू शकतो ना मोबाईलमध्ये म्हणजे मेन लेन्स किंवा फिल्टर टाकू शकतो. आता टाकू शकतो. फिल्टर शिकवलंय कुठे? अँग्युलरमध्ये यूज तर तसंच होणार ना. ते आपण एरर मेसेजसाठी टाकू ना मेन लेन्स. हां तसं पण टाकू शकतो स्क्रिप्टमध्ये ना. हां टाकू शकतो. आलं उत्तर तुझं. व्हेरी गुड. विभा कधीतरी येते पण तिचे उत्तरं येतात. विभा आता दुसऱ्या याच्यासाठी पण वापरतो. डेट ऑफ बर्थसाठी वापरतो किंवा एज घे. इनपुट टाईप टेक्स्टच आहे. एकसाठी नंबरच आहे ना. नंबरच आहे ना ते.
पण तसंही ते डेटाला प्रकार मॅच नाही करत. त्यामुळे तू ॲज इट इज घेतलं तरी चालेल. मॅम असं आहे ना, डेटा टास्क ठीक आहे ना. पंचमध्ये आपण किती पण टाकलं तरी पण ते नाही, म्हणून तर त्याला फिल्टर लावायचं. बोलले ना, इट इज इक्वल टू 10. आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, ये स्क्रीन आ गया. अभी इस पे तेरा डेटा एंटर करने के बाद डेटा डिस्प्ले किधर हो रहा है? सारे डेटा डिस्प्ले हो रहा है. हाँ तो बराबर है. कंट्रोलर यूज किया है क्या? गुड. ओनली 3 स्टूडेंट्स गॉट द आउटपुट. तुम लोग के आ गया आउटपुट, आ गया कंट्रोलर का. Got the answer, huh? Okay, now listen. ng show और ng hide करके डायरेक्टिव है, these two डायरेक्टिव. जिनका आंसर आ गया है वो लोग ng hide and ng show यूज करके देखो. गूगल करो, ng show और hide है. थोड़ा चेक तो करो, ट्राई करो. अदरवाइज आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट ट्राई. एनजी शो एंड हाइड मत करो, हम लोग बाद में करेंगे. एनजी हाइड स्विच करके देखो जरा. स्विच केस पता है ना? स्विच केस पता है ना? फंक्शन उसकी डायरेक्टिव यूज कर.
काय ते काय अरे ते घेतले असताना फाईल आपण लावली एक फक्त कृतिकाची लावली कृतिकाची नाव एच टाकलेला आणि आर बरोबर टाकलेला राहिली का मग राहिली हा त्याच्यावरती आर टाकलं एज को थोड़ा देखो, एज को आप एज ही लिए हो ना, तो मोबाइल नंबर लिए हो तो एज ट्रांसफर 4 डिजिट किती पण है ना, एक्टिव हो रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए. वी कैन अप्लाई डिजिटल आले कोण लेक्चर घेणार
अच्छा ऑफलाइन ऑनलाइन वाले चलो बाय। समझा ना तुम लोग को? यस मैम। समझा है ना तुम लोग को? Yes, ma'am. बाय बाय। वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज लेक्चर। हाँ, मिनी प्रोजेक्ट करने हम लोग डायरेक्टिव्स पूरे कंप्लीट करेंगे। हॅलो अंशिका, आणि कॉल करून सांग इंटरव्ह्यू बाबा येऊन इथे हात पाय पकडतात आणि रडारड करतात आणि त्याला घोडा आलं तिथं केलं काय व्हॉट्सअप करून शेअर मेल केला मग आम्ही एकदमच सगळं मेल करू पूर्वाला मेसेज दे आणि त्या पूजाला फोन करून सांग. मधू चल ना डबा पोळ्या मला ते खाली जायचंय अच्छा सूत्रा में कौन कौन बैठने वाले हो? सूत्रा के लिए दिए ना तुम लोग के नाम पूर्वा को, जिन लोग को नाम दिए हाँ तो कल शायद हो जाएगा तुम लोग का 20 रिक्वेस्ट हो जाए। कल नहीं होगा तो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा। मीटिंग लीव कर दूँ मैं तो फिर शाम को बता मैम की मीटिंग कैंसिल है मैम लीव कर दूँ करो ना लीव।